Yes, in the last lecture we have seen the what is computer hardware, types of computer hardware, motherboard. We have learned CPU. CPU. We will learn. Okay. And then what is memory, that we have learned computer memory. Okay, there are three types of computer memory: primary memory, secondary memory, and cache memory. Okay, so primary memory and secondary memory we have covered. Okay, cache memory is remaining. So today we will cover the cache memory. Okay, but before that, anyone can tell me what is primary memory and what is secondary memory? How it works? Chalo, who will tell? जो समझ में आया. Okay, whatever you understand, just tell me. Okay, what is primary memory? What is the use of primary memory and what is the secondary memory? Yes. Anyone can try. Yes. Kasim. Currently, data is for primary memory. Yes. Okay. And secondary memory. Secondary memory. You are not audible. Kasim, your, I think, network issue. You are not audible. Your voice is breaking. Yes, anyone can try. Kasim का voice नहीं आ रहा है. Kasim, you can type in chat box. Yes, anyone can give the answer. What is primary memory? What is secondary memory? What are the functionalities of primary memory? Or the characteristics, you can say. What is characteristics of primary memory? Yes, students. चलो फास्ट जैसे समझ में, ऐसा नहीं कि आपको करेक्ट ही बोलना है या तो आपको जो रट्टा मार के बोलना है. नो, वॉट एवर यू हैव अंडरस्टैंड, जस्ट टेल मी कि आपको क्या समझ में आया. व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड के ये प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी. यू कैन गिव आंसर इन योर ओन वर्ड्स आल्सो. ठीक है. यस. Primary memory, it holds only those data or instruction on which the computer is currently working. Okay, good. Secondary memory. Secondary memory is also known as external memory or non-volatile. It is slower than main memory. It stores the data permanently. Yes, very good. Okay. Give the example of secondary memory. Some example of secondary memory. Pen drive, ma'am. Yes. Madam, hard disk. Yes. Ma'am, pen drive. Yes, pen drive also, hard disk also. Yes, very good. Memory card. Yes, memory card. Yes, very good. Okay, so all are the secondary memories, or you can say secondary devices. Okay, very good, students. Good. Okay, so primary memory and secondary memory we have learned in the last lecture. Okay, so these are the main characteristics of the main memory, or you can say primary memory. You have to remember it is volatile. What is the meaning of volatile? Data is lost in case power is switched off. Okay, and it is faster than secondary memory, and a computer cannot run without the primary memory. Okay, so these are the basic functionalities, you can say, or characteristics, you can say, of main memory that you have to remember. The secondary memory, okay, this type of memory also known as external memory, or it is a non-volatile memory. Non-volatile मतलब क्या? Data will be data will be permanently stored, okay, in this memory. Okay, जब तक आप उसको खुद delete नहीं करते, remove नहीं करते, तब तक data will be there. Okay, it is slower than main memory. Secondary memory is slower than main memory. Okay, when we are storing the data in secondary memory, okay, secondary memory जब हम लोग data store करते हैं, okay, तो डेटा वहां पे परमानेंटली तो स्टोर होता है, बट व्हेन वी आर यूजिंग दैट डेटा, ठीक है, वो मेमोरी का डेटा जब हम लोग यूज करते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है कि डेटा आर ट्रांसफर टू मेन मेमोरी. डेटा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज सीपीयू जो एग्जीक्यूट करता है डेटा, वो कहाँ से लेता है? मेन मेमोरी में से लेता है. CPU will execute the data that which data are stored in the main memory. So ये जो ट्रांसफर जो हो रहा है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, ओके, वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज, ओके, हार्ड डिस्क का जो भी डेटा है,
कोई भी डेटा पेन ड्राइव का है, डीवीडी का है, जो भी डेटा, जो भी कंटेंट्स है सेकेंडरी मेमोरीज का, आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मेन मेमोरी में ट्रांसफर होने के बाद देन CPU will execute that data from the main memory. Okay, so this is the concept of secondary memory. तो ये आपको याद रखना है। Okay, clear? Yes. Example: disk, CD-ROM, DVD, all are the secondary devices. Okay, तो ये secondary device के characteristics है. These are the magnetic and optical memories. It is known as backup memory. It is non-volatile memory. Data is permanently stored, even if the power is switched off. It is used for storage of data in computer. Computer may run without the secondary memory, and it is slower than primary memories. Okay. Then this is a cache memory. This is a third type of cache. This is a third type of memory, cache memory. Okay. Cache memory is very high speed memory. Okay. Cache. एक मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। ओके, सॉरी। हाँ, तो दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी, कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड। ओके, फास्ट मेमोरी है, इट इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी व्हिच कैन बी स्पीड अप द CPU. It act as, okay, cache memories act as a buffer between the CPU and main memory. Okay, again I am reading this sentence: cache memory act as a buffer between the CPU and main memory. Okay, जब हम कोई भी whenever some programs are executing, तो what will be happen कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है, CPU जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, दैट प्रोग्राम कहाँ पे होगा? इन दी मेन मेमोरी में होगा, ठीक है। तो CPU, what the CPU will do? CPU will execute that program from the main memory, but CPU and main memory के बीच में one buffer will be there. Okay, मतलब temporary space, if have, you can say area of the memory, that उसको हम लोग बोलते हैं बफर। तो CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में एक बफर होता है, ठीक है। तो इट इज यूज, तो वो बफर में क्या स्टोर होता है? वो बफर मतलब भी कैच मेमोरी। तो बफर इज यूज, और यू कैन से कैच मेमोरी इज यूज्ड टू होल्ड दोस पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आप आपके सिस्टम में बार बार आपने गूगल क्रोम ओपन किया, या तो गूगल क्रोम में एक ही वेबसाइट ओपन करो, ठीक है। तो आपका CPU क्या करेगा कि अगर वो कोई आइटम्स है, तो कोई डेटा बार बार रन करे, तो उसको कहाँ पे स्टोर करके रख देगा? बफर्स में। तो एवरी टाइम अगर यूजर सेम रिक्वेस्ट आएगा सेम वेबसाइट्स के लिए, तो सेम वेब पेज के लिए, तो व्हाट दिस CPU विल डू? CPU क्या करेगा? उसको बफर में से लेके देन वो एग्जीक्यूट करेगा, तो प्राइमरी मेमोरी में से नहीं लेगा। ओके, तो व्हाट इज द कैच मेमोरी? कि जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो है, ओके, जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, दैट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा विल बी स्टोर्ड इन द बफर। ओके, व्हाट इज बफर? बफर इज अ पार्ट ऑफ स्पेस है, मेमोरी में स्पेस क्रिएट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द बफर, एंड बफर मतलब कैच मेमोरी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली जो डेटा हम लोग बार बार यूज करते हैं ना, वो डेटा वो बफर में स्टोर हो जाता है। तो एवरी टाइम जब कोई रिक्वेस्ट आता है सेम वेबसाइट्स के लिए, तो सेम प्रोग्राम्स के लिए, सेम डेटा के लिए, तो कंप्यूटर CPU क्या करता है? उसको बफर में से लेके देन एग्जीक्यूट करता है। ओके, द पार्ट्स ऑफ डेटा एंड सेगमेंट आर ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू कैच मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द CPU कैन एक्सेस देम। फॉर एग्जांपल देखो, आपके मोबाइल में ना कोई ऐप है जो आप बार बार यूज करते हो, ठीक है। तो जब आप उसको यूज करते हो, ओपन करते हो, ऑटोमेटिकली उसमें आपका यूजर नेम एंड साइन इन हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ बफर। क्योंकि पता है मेमोरी को ये बार बार लग रहा है, तो उसको क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? उसको बफर में स्टोर कर देता है वो डेटा आइटम को। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन का प्रोसेस विल बी फास्ट। ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं फास्ट मेमोरी। तो जो डेटा एंड जो प्रोग्राम CPU बार बार एग्जीक्यूट कर, मतलब बार बार उसको रिक्वेस्ट आ रहा है CPU को कि वही एक्सेस करना है, ठीक है। जैसे आप गूगल क्रोम में आपका डेटा सेव हो जाता है, ठीक है, कोई वेबसाइट पे आप बार बार लॉगिन करे हो, या तो कोई एप्लीकेशन आप बार बार यूज करे हो, ठीक है, तो उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका सेव हो जाता है। ओके, तो वो क्या हो गया? बफर में सेव हो जाता है। तो वो अब CPU क्या करता है? उसको बफर में से उसको रन करता है, कैच मेमोरी में से उसको डेटा लेकर उसको एग्जीक्यूट करता है। दैट इज द कैच मेमोरी। इट इज अ वेरी फास्ट हाई स्पीड मेमोरी। ओके, क्लियर? The advantage of cache memory, what is the advantage?
the cache memory is faster than main memory से faster है. Okay, it consumes less access time. This is the main thing. It consumes less access time as compared to main memory. Okay, फास्ट है, वो फास्ट है इसीलिए सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए कम टाइम लगता है. व्हाई? बिकॉज वो सीपीयू क्या करता है, मेन मेमोरी में से डेटा लेता है, इधर उसे एग्जीक्यूट करता है. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो सीपीयू बार बार कोई प्रोग्राम बार बार उसका प्रोग्राम कर देगा, मेमोरी में से नहीं लेगा, जस्ट एग्जीक्यूट डेटा फ्रॉम द बफर. इट विल टेक द लेस एक्सेस टाइम. ओके, इट रिक्वायर्ड द लेस एक्सेस टाइम. It stores the program that can be executed within a short period of time. Yes, please mute student. Okay, it stored the program that can be executed within a short period of time. Okay, जो जिसका एग्जीक्यूट करने के लिए स्मॉल टाइम लगता है, वही डेटा विल बी स्टोर्ड. एंड इट स्टोर द डेटा फॉर टेम्पररी यूज. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10 डेज तक या तो 15 डेज तक साइमल्टेनियसली एक ही वेबसाइट बार बार यूज करे. ठीक है, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज अगर आप उसको टच भी नहीं करो, उसको एक्सेस भी नहीं करो, ठीक है, उसको आपने ओपन नहीं किया, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको उसमें से कैच मेमोरी में से निकाल देगा. व्हाई? बिकॉज कैच मेमोरी में वही डेटा यूज होगा कि जो बार बार यूज हो रहा है, बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है. That data will be reside in the cache memory. Okay, so that is the cache memory. Okay, the next is RAM and ROM memories. Okay, RAM and ROM memories, random access memory and read only memory. Okay, these are the parts of primary memory. ठीक है, जो हमारा primary memory है उसका two parts, उसको two categories में divide किया है हमारे primary memory को. The first is RAM, random access memory, and the second is ROM, read only memory. Okay, random access memory and read only memories, these are the parts of main memory. Okay, main memory मतलब क्या, main memory मतलब primary memory. What is primary memory? कि सीपीयू जो करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है वो डेटा कहाँ पे होगा, प्राइमरी मेमोरी होगा. तो वो जो प्राइमरी मेमोरी उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज रैम एंड सेकंड इज रोम. रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी. ओके, एंड रोम मतलब रीड only memory, R for read, O मतलब only, and M for memory. Okay, देखते हैं हम लोग क्या है. What is RAM? To RAM, random access memory is the internal memory of the CPU for storing data, programs, and program result. Okay, it is a read-write memory which stores the data until the machine is working. As soon as the machine is switched off, data is erased. Okay, मतलब आपका जो प्राइमरी मेमोरी है, जो मैंने बोला कि CPU करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है. ओके, सीपीयू इज करंटली एग्जीक्यूटिंग डेटा. तो सीपीयू जो करंटली एग्जीक्यूट करता है ना डेटा, वो कहाँ पे स्टोर होगा, रैम में. ओके, एंड दैट डेटा जो है दैट इज अ रीड एंड राइट मेमोरी. ठीक है, उसमें मतलब हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, उसमें कुछ अपडेट किया तो चेंजेस भी हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे कुछ मेमोरीज है तो एस निकाल दिया मैंने. ओके, तो अभी करंटली क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, जूम एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू एग्जीक्यूटिंग द जूम एंड दिस पीपीटी. ओके, तो मैंने पीपीटी में चेंज किया, कुछ सेव किया, तो इट विल बी अपडेटेड इन दी मेन मेमोरी में, अपडेटेड हो जाएगा. अगर मैंने एस कर दिया, सेव कर दिया, तो डेटा जो है मेरा वो अपडेट हो गया, राइट हो गया. तो जो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है, रैंडम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो डेटा है दैट कैन बी रीड एंड राइट. ओके, बट इट इज अ वॉलेटाइल. जो मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी ही वॉलेटाइल है, रैम इज अ वॉलेटाइल. ओके, डेटा विल बी लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर. या तो फिर मैंने यहाँ से ये क्लोज कर दिया, जूम क्लोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से तो निकल जाएगा. ओके, hence a backup uninterruptible power system is often used with the computers. Okay, RAM is small both in terms of physical size. ठीक है, ये जाने दो इसको, no need to. ठीक है, ये what is UPS we will learn next. ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे what is UPS. RAM is small both in terms of physical size and amount of data it can hold. Okay, आपने RAM का देखा होगा साइज, RAM देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था, this is a RAM. ओके, इसमें नहीं था क्या, हाँ, दिस इज रैम. वेट, दिस इज द रैम. ठीक है, उसका साइज है 512 MB रैम है. ठीक है, 256 का होता है, 512 रैम होता है. ठीक है, MB में, तो दैट इज अ रैम. ओके, सो रैम यू नो कि जो करंटली डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है दैट विल बी स्टोर्ड इन रैम मेमोरी, एंड रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. ओके, देन सेकंड इज रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी. Okay, read only memory. Okay, the ROM stand for read only memory. The memory from which we can only read
but we cannot write on this. तो ये memories में only data will be read. Not, we cannot change data of this memory. Okay, this type of memory is non-volatile. Okay, the information is stored permanently in such memories during the manufacturer. See, during the manufacturer, जो मैन्युफैक्चर जब सिस्टम बनाता है तो सिस्टम बनाते टाइम में जो डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रोम में. ओके, तो जो सिस्टम बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर जो कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में क्या स्टोर करके रखते हैं, क्या स्टोर करके रखते हैं हार्ड डिस्क में, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड व्हेन यू विल स्टार्ट, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लोड होता है, रोम में. ROM, रोम, उसको बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस. ए रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर टू स्टार्ट द कंप्यूटर. सी, ओके, एंड कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है हमको, ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एंड दिस प्रोसेस जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, एट दैट टाइम हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लोड होता है, रीड ओनली मेमोरी में. उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. दिस इज ओनली रीड ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम. जो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, नो, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. हाँ, आप उसको मॉडिफाई करना तो यू हैव टू डू फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, बट आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ कर सकते हो आप लोग, नो, ठीक है, उसमें कुछ अपडेट चेंजेस नहीं कर सकते. उसको आपको फॉर्मेट मार के यू कैन चेंज ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हो, बट आप उसको कुछ बनाया जो ऑलरेडी है उसको चेंज नहीं कर सकते. उसका कंटेंट यू कैन नॉट चेंज. ओके, दिस ऑपरेशन इज रिफर्ड एज बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप मतलब क्या, जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी लोड इनटू द रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी में वो लोड होता है. देन तब जाके हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है. तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप. दिस ऑपरेशन इज referred to as bootstrap or you can say booting process. उसको booting process, आप जब देखो सिस्टम स्टार्ट, जब डेस्कटॉप जनरली स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि booting process. क्या प्रोसेस हो रहा है, मतलब booting process चल रहा है. तो एट द टाइम क्या होता है, आपका जो रोम में लोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेता है सिस्टम स्टार्ट होने में. ओके, एकदम से डेस्कटॉप नहीं जाता, थोड़ा प्रोसेस चलता है वहाँ पे, ठीक है. तो अगर डिलीट दबाओगे तो F10 या तो F9 दबाओगे तो आपकी सेटअप ऑपरेशन विल बी ओपन, ठीक है. तो आप उसमें कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो, बट ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोसेस. ओके, रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर बट आल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, उसमें भी रीड ओनली मेमोरी स्टोर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर किया होता है. ओके, yes, okay, so this is a ROM. So clear what is RAM and what is ROM, what is primary memory, what is secondary memory, what is cache memory, and RAM and ROM both are the parts of the primary memory. Understand? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, yes, other students please reply. Okay, only 3 to 4 students है वही reply करते हैं. हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो you can ask me student. Okay, ऐसे नहीं है कि मैम बोलेंगे तो explain नहीं. Ma'am, understood. Yes, very good, good. Okay, yes, मैंने आपको कल एक काम दिया था करने के लिए, आप लोगों ने किया. You have find the मदरबोर्ड का पिक मैंने आपको सर्च Motherboard components. हाँ, तो आप लोगों ने देखा क्या क्या मदरबोर्ड में कौन से पार्ट्स कनेक्ट किया हो, Yes. कनेक्टेड किया हो रहता है. जस्ट गिव मी द नेम्स, बताओ मुझे. साउथ ब्रिज मैम. यस, और आपने क्या क्या देखा, क्या क्या कंपोनेंट्स कनेक्ट किया हो रहता है मदरबोर्ड पे. जस्ट गिव मी द नेम्स ऑफ दैट कंपोनेंट्स फर्स्ट. PCI मैम, AGP, नॉर्थ ब्रिज और प्रोसेसर सॉकेट, मेमोरी. यस, वेरी गुड. यस, Ma'am, हाँ, जो two major components है ना, वो CPU and RAM है. yes, good. All are the component, main components ही है, because अगर एक भी components में miss हो गया तो we cannot use our system, ठीक है. तो all are the components में ये सारे components important ही है, वो सारे components combine होके then our system work होता है, ठीक है. Yes, और क्या क्या components देखा आप लोगों ने, टाइमर देखा, टाइमर is there. Connection for integrated peripherals. पेरिफेरल्स के लिए कनेक्शन है, वेरी गुड. और CPU socket.
CPU fan, Yes, fan is there. AGP slot, Yes, very good. PCI slot, Yes, BIOS is also there. Yes, very good. backup battery. Yes, okay. So when college will start ना, I will show you. मैं आपको दिखाऊंगी जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो हम लोग रियल में मदरबोर्ड देखेंगे, ठीक मैम है? USB पोर्ट भी. हाँ, ये USB पोर्ट भी है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हमारा USB कनेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे है उसमें, ये पैरेलल स्लॉट्स भी उसमें रहता है, ओके। तो बहुत सारी चीजें होती है मदरबोर्ड में, ठीक है, बहुत माइनर चीजें भी होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग BSc आपके पास दो ऑप्शन है, यू कैन वर्क एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और यू कैन वर्क एज नेटवर्क इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। जब आप लोग हार्डवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो यू शुड हैव क्लियर कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स हार्डवेयर रिलेटेड, कि क्या क्या कैसे कनेक्ट किया हुआ है मदरबोर्ड में, क्या क्या स्लॉट्स है, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। आपको उसका अच्छा आइडिया है, मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हार्डवेयर तो आप एज अ हार्डवेयर इंजीनियर भी काम कर सकते हो, ठीक है। आपका कोडिंग अच्छा है तो यू कैन गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी जा सकते हो। अगर वी हैव द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स। तो उसमें सपोज आपका DBMS करके एक सब्जेक्ट है, डेटाबेस है। अगर आपको डेटाबेस आपका अच्छा इंटरेस्टिंग है तो यू कैन गो एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या तो डेटाबेस के लिए आप काम कर सकते हो, ठीक है। So we have lots of opportunity for the jobs after the BSc IT. But what is the main thing कि आपको जो भी चीज आप पढ़ोगे, take the interest, okay, and explore your mind, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा आपको करने के लिए। ऐसे नहीं है कि ओनली एक ही जगह पे आप जा सकते हो, ऐसे नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। नाउ एवरीवेयर IT इज यूज्ड, ठीक है। बट व्हाट इज द मेन थिंग कि आपका जो लॉजिक है, प्लीज इंक्रीज योर लॉजिक, आपका जो थिंकिंग पावर है दैट इंक्रीज। अभी तो स्टार्टिंग है, ओके, दिस इज द थियरी, सब ऑपरेटिंग सिस्टम थियरी है, बट जो बाकी सब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल अभी आपको IP है, ओके, C लैंग्वेज आपको पढ़ना है तो प्लीज C लैंग्वेज बहुत प्रैक्टिस करो, ओके। उसमें जितना हो सके उतना प्रोग्राम्स ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। आउट ऑफ द सिलेबस सोच के आप उसमें क्या एडवांस कर सकते हो, ठीक है। तो जितना आप इंक्रीज करोगे आपका नॉलेज उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो आपका जो माइंड है वो ना ऐसे एक्सपैंड करो, ऐसे उसको लिमिटेड सोचने के लिए मत रखो, ठीक है। अभी तक इन द 12 अप टू 12 व्हाट यू आर डूइंग, जो सिलेबस था उतना पढ़ लिया, हो गया, बट नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल फील्ड है हमारा। IT इज अ प्रैक्टिकल फील्ड, ओके। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपडेटेड रहोगे मार्केट में क्या क्या आ रहा है, आपके पास नाउ एवरी स्टूडेंट हैज अ मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, यू हैव दी गुड नेट पैक भी है, तो गूगल में सर्च करते रहना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ओके। ऐसा न्यूज यू कैन रीड, ओके। आपको खुद को अपडेट करते रहना है, बिकॉज वी आर दी IT स्टूडेंट्स, ओके। तो ये अभी से उसका हैबिट डालो, ओके। नाउ फेसबुक, तो फेसबुक में जस्ट ओनली फेसबुक में स्टेटस अपलोड कर दिया, तो कमेंट पोस्ट कुछ पोस्ट कर दिया, नो। फेसबुक में क्या न्यू थिंग्स आ रही है, उसमें क्या अपडेशन हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखते जाना, बिकॉज जो आप अभी देखोगे, जैसे यूज करोगे, देन यू विल गेट आइडिया कि यस हम ऐसी सारी चीजें बना सकते हैं, ओके। तो ये इन द लास्ट सेमेस्टर में वी विल डू दी वन प्रोजेक्ट। आपको एक प्रोजेक्ट, हमको एक प्रोजेक्ट करना होता है, मतलब ठीक है, हम लोग आपको गाइड करेंगे हाउ टू डू वन प्रोजेक्ट। तो आप ये सारी चीजें अभी से सोच के रखोगे, ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ये अभी हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपका थिंकिंग लेवल इंक्रीज करो, ठीक है। ऐसे लिमिटेड, मेरा एक ही इंटेंशन है कि लिमिटेड नहीं कि जो बस थियरी हमने पढ़ लिया, लेक्चर अटेंड कर लिया, हो गया, नो, ओके। बी एक्टिव, ओके। जितना एक्टिव बनोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बाकी थियरी तो सब लोग पढ़ के पास हो ही जाते हो, ओके। आप 12th तक आप लोगों ने अभी ऐसे ही किया, थियरी पढ़ा लिखा पास हो गया, ओके। बट नाउ इन द IT फील्ड वी रिक्वायर द स्किल्स, ठीक है। 60 से ज्यादा परसेंटेज आएगा तो भी फर्स्ट क्लास है, ओके। एंड 69 लाएगा तो भी फर्स्ट क्लास है, 60 लाएगा तो भी फर्स्ट क्लास है, वो मैटर नहीं करता। हमारा IT फील्ड में मैटर क्या करता है, फर्स्ट क्लास है, बट वी रिक्वायर दी अवर स्किल, दे वांट दिस स्किल, कंपनी वाले स्किल मांगते हैं कि क्या स्किल है आप लोगों के पास, क्या आप कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। सो प्लीज बी ज्यादा फोकस करो ऑन दी प्रैक्टिकल टर्म्स में, ठीक है। ओके, चलो, ये तो हो गया हमारा रैम रोम, ओके। प्राइमरी मेमोरी अभी तक आपने सुना था व्हाट इज मेमोरी, ठीक है। बट नाउ आपको भी समझ में आ रहा है कि यस मेमोरी में भी टाइप्स, अलग अलग टाइप्स है। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, वी आर स्टोरिंग दी डेटा, हम लोग डेटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में, बट हमको ये नहीं पता था कि जब हम लोग डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, उसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करते, ओपन करते, तो CPU उसको
सीपीयू कहाँ से एग्जीक्यूट करता है, मेन मेमोरी में से। तो हमको ये डेटा हार्ड डिस्क में से कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, मेन मेमोरी में। तो वो कौन ट्रांसफर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो दिस आर दी, ये बैकग्राउंड नॉलेज है, दिस इज अ बैकग्राउंड नॉलेज दैट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। यस, अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, तो यस बटन प्रेस किया, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। नाउ बट वी, अभी हमको समझ में आ रहा है ये पढ़ने के बाद कि व्हेन वी विल स्टार्ट अवर कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एट दैट टाइम क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा विंडोज है या तो एंड्रॉइड है, ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, ROM मेमोरी में, रोम मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है। उसको स्टोर कहाँ पे किया हुआ रहता है, हमारे हार्ड डिस्क में। ओके, तो ये सारी बेसिक थिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आपको सोचना है, एंड वो सोच के समझ के आपको याद रखना है, रट्टा नहीं मानना है, प्लीज डोंट डू रट्टा। ओके, समझ के याद रखो, प्रैक्टिकल सोचो कि यस ऐसा होता है, पॉसिबल है। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन आल्सो सर्च इन गूगल, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, अगर आपको थोड़ा शाय फील हो रहा है पूछने में सबके सामने, यू कैन पर्सनल मैसेज पूछ सकते हो, या तो वी विल मेक द ग्रुप लीडर, सब हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे आफ्टर दी 1 वीक के बाद, ठीक है। हम लोग आपको स्टूडेंट का ग्रुप बना के दूंगी मैं आपको। तो हर एक ग्रुप में एक लीडर होगा, बाकी मेंबर्स होगा, तो वो साथ में बैठ के या तो डिस्कस करके, बैठ तो भी नहीं सकता, ऑनलाइन है, तो ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के, यू कैन डिस्कस, यू कैन स्टडी, ओके, यू कैन शेयर योर नॉलेज विद योर ग्रुप मेंबर्स। तो आप हम लोग ऐसा करेंगे, बट आफ्टर 1 वीक, ठीक है। ओके, चलो, तो ये हमने कवर किया। तो इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अगर इसको रीड करो, इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री हमने देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है वो हमने देखा, डिटेल्स में नहीं देखा, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। बट फाइल हैंडल करना, मेमोरी मैनेज करना, ठीक है, डिवाइसेस इनपुट आउटपुट हैंडल करना, ओके, memory handle karna, all are the tasks of operating system, all are the functions of operating system that we have seen. Okay, now next is types of operating systems. ठीक है, मैंने आपको बोला कि IT इज अ अपडेटिंग फील्ड, रोज रोज उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, कुछ मार्केट में न्यू न्यू आता रहता है, ठीक है। एवरी कोई सॉफ्टवेयर होने दो, कोई आप मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो आपको हर टाइम के बाद उसको अपडेट करना पड़ता है, एंड आफ्टर अपडेटिंग यू विल गेट कुछ न्यू फीचर्स, यू विल गेट, है ना। व्हाट्सएप का आपको मैसेज आता है आफ्टर 6 मंथ्स या तो आफ्टर 4 मंथ्स के प्लीज अपडेट दी सॉफ्टवेयर। जब आप उसको अपडेट करते हो आपका व्हाट्सएप, तो यू विल गेट कुछ न्यू एक फीचर उसमें मिलता है, ठीक है। पहले स्टेटस नहीं था, देन स्टेटस आ गया, अभी पेमेंट का है आई थिंक। ओके, आपने अपडेट किया होगा तो आपको दिखाई देगा पेमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यू कैन डू। आप आपका अभी लेटेस्ट मैंने अपडेट किया, तो अपडेट होने के बाद मैंने देखा कि आप उसमें आपका शेयर कर सकते हो फेसबुक में, ऐसा कुछ तो स्टेटस में है। तो ये सारी चीजें यू हैव टू मार्क, ये सारा भी आपको मार्क करना है। क्या अपडेट करने के बाद हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, ओके, बिकॉज आप आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस बेस पे ही बनाओगे, क्लियर। तो अभी स्टार्टिंग है, तो जस्ट मैं आपको मोटिवेट करूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा, जस्ट डू स्टार्टिंग की, यस, ऐसे थोड़ा थोड़ा सर्च करते रहना है, ओके। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ना बहुत चेंज होते होते आ रहा है, ठीक है। बहुत ईयर्स पहले जब कंप्यूटर फाइंड हुआ, जब इन्वेंट, सॉरी, जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, ठीक है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग था, और अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत चेंज आ गया। ओके, अभी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज कैसा है, ग्राफिकल है, ठीक है, ग्राफिकल है। दिस अब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा जो है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यू कैन चेक इन योर सिस्टम कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा वर्जन है। तो आप क्या करना है, जस्ट कंप्यूटर पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो, यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिस्टम है मेरा यहाँ पे, देखो कि विंडोज कौन सा है मेरा, विंडोज 7 अल्टीमेट है, ओके। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 7 है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट अभी कौन सा है उसमें भी टाइप्स है, अभी विंडोज 10 चल रहा है, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में कौन सा है, 7 है, ठीक है। देन प्रोसेसर कौन सा है, दिस इज अ प्रोसेसर, ओके, इंटेल R4 TM Duo CPU, दिस इज माय प्रोसेसर, ओके। मेरा जो मेमोरी है, रैम है जो इंस्टॉल किया, और इसमें जो रैम है उसका साइज कितना है, 2 GB, कितना है, 2 GB। इफ आई वांट टू एक्सपांड, ठीक है, मुझे मेमोरी एक्सपांड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक मेमोरी लाके, मतलब वो जो मिलता है, मैंने आपको दिखाया मेमोरी, वो लाके
जो सीपीयू स्लॉट दिया हुआ है मदरबोर्ड पे उसमें मैं फिट कर दूंगी तो मेरा मेमोरी साइज इंक्रीज हो जाएगा। इफ आई वांट टू इंक्रीज 4 GB, तो अगेन अगर मेरे सीपीयू में मदरबोर्ड पे स्लॉट अवेलेबल है तो आई कैन ब्रिंग परचेज न्यू मेमोरी ओके, और वो स्लॉट पे मैं फिट कर सकती हूँ। बिकॉज वो फिजिकल स्लॉट अवेलेबल है तो उसको मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो आपके सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसर का बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, मेमोरी कितना है आपके सिस्टम में वो समझ में आएगा। ठीक है, एंड हार्ड डिस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, हार्ड डिस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सी, ठीक है, दिस इज सी ड्राइव। ओके, so you can see here, ओके, यूज स्पेस कितना है 54 है, कैपेसिटी कितना है 234, ये जो मेरा सी ड्राइव है, ठीक है, उसका कैपेसिटी कितना है, यू कैन चेक इन योर सिस्टम, आप ये अपने सिस्टम में चेक कर सकते हो जिसका वो सिस्टम अवेलेबल, ये फ्री स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, ऑल आर दी बेसिक कंसेप्ट, वो आपको पता ना, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा बिकॉज नाउ एवरीवन यूज दिस सिस्टम, सब लोग अब सिस्टम यूज करते हैं, सबके पास कंप्यूटर तो होता ही है अभी नाउ डेज। ओके, तो यू कैन चेक ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये कैपेसिटी इतना है, अभी इतना अवेलेबल है, फ्री स्पेस इतना मेरा यूज हो चुका है। ठीक है, यूज किया है मैंने इतना, तो ऑल आर दी बेसिक थिंग्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक। ओके, so this topic we will cover in the next